Hello students, it's me Devinder. Welcome back to my channel Study Time. Today we will study about the chapter Adventures of Toto of class 9's book Moments. This chapter was written by the author Ruskin Bond. Here's a picture of Ruskin Bond. You can see he is an Indian author of British descent. He is considered to be an icon among Indian author and children's author and a top novelist. He wrote his first novel, Room on the Roof, when he was 17, which won John Llewellyn Rhys Memorial Prize in 1957. He was awarded by Sahitya Academy Award Padam Shri Padam Bhushan. Let's start the chapter. Who is Toto in the chapter? This chapter highlights the challenging behavior of a mischievous monkey. This is very interesting chapter. The narrator's grandfather was fond of keeping different kind of pets. One day, he bought a monkey from a Tonga driver for ₹5. Its name was Toto. Grandfather bought him to keep in his private zoo. Toto was a pretty monkey. He had mischief in his shining eyes. His teeth were white like pearls. His hands were dried up. Fingers were quick and tail served as a third hand. The narrator's grandfather did not want his wife to know about Toto's presence at home because she dislikes him collecting pets. So Toto was kept in a secret place. It was a little closet, and in this picture you can see here's a closet of purple color. It opened into a narrator's bedroom. Toto was kept tied to a peg. Peg एक hooked होता है जिसमें कि टोटो को टाई अप किया गया था and उसको बांधा गया था. A few hours later, the narrator found a change in his room. Everything was spoiled in the room. Toto had removed the ornamental paper from the walls. क्या changes थे रूम में? टोटो ने ornamental paper को फाड़ दिया था, रिमूव कर दिया था वॉल से. एंड व्हाट इज ऑर्नामेंटल पेपर? आजकल जो वॉल में जो वॉलपेपर्स लगाते हैं हाइड करने के लिए सीमेंट एंड प्लास्टर्स को. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्नामेंटल पेपर. तो इसने मॉन्की ने क्या किया था, उसे रिमूव कर दिया था, फाड़ दिया था, और जिसकी वजह से जो ब्रिक्स थी, सीमेंट एंड प्लास्टर थे, वो दिखने लगे थे. ही हैड ऑल्सो पुल्ड आउट द पैग, जिससे वो बंधा हुआ था हुक जो था वो भी उसने खींच के बाहर कर दिया. ही ऑल्सो टोर अप द नैरेटर्स स्कूल ब्लेजर, और जो स्कूल ब्लेजर था उसे फाड़ दिया. ग्रैंडफादर सीम्ड प्लीज विद टोटोज मिसचीफ. इसकी मिसचीफ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुश हो रहे हैं. क्यों खुश हो रहे थे वो? क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्लेवर था कि उसने पूरी कोशिश करी थी कि नैरेटर के ब्लेजर को फाड़कर वो रस्सी भी बना के वो भाग सकता था. एंड टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस. अब वो इतना ज़्यादा परेशान कर्ज हो चुके थे कि इतनी ज़्यादा स्पॉइल कर चुका था वो चीज़ों को, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एक बिग केस में अलॉन्ग विद हिज अदर पेट्स. उसके साथ और भी पेट्स थे, बट it did not work because Toto had not let the animals sleep through the night. पूरी रात और जो अदर पेट्स थे, अदर एनिमल्स थे, उनको सोने नहीं दिया था. Their grandfather's other animals lived sociably. Sociably means friendly. वो जो रहते थे फ्रेंडली रहते थे अदर एनिमल्स. These were a tortoise, a pair of rabbit, a squirrel, a pet goat. The monkey did not allow them to sleep peacefully.
ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून. अब उनको क्या था, देहरादून छोड़ा उन्होंने. ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर. अब सहारनपुर जाना था उन्होंने अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए. एंड ही टुक टोटो विद हिम. टोटो को अपने साथ लिया उन्होंने. एंड क्यों लिया उन्होंने, नेक्स्ट डे के लिए उसको साथ में ले गए. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? देयर आर टू रीज़न बिहाइंड इट. The narrator's grandfather did not want his wife to know about the Toto's presence at home. इसलिए क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी वो लाइक नहीं करती थी पेट्स को कलेक्ट करना. सो दैट वाज अ फर्स्ट रीज़न. एंड सेकेंड रीज़न कि जो केस के अंदर जो पेट्स थे वो उनको डिस्टर्ब करता था. ओके, सोने नहीं देता था सारी रात. सो दैट वाज अ अदर रीज़न. इसलिए उन्होंने सहारनपुर के लिए टोटो को अपने साथ लिया. Grandfather got a big black canvas kit bag. He put Toto into it. अब बिग बैग कैनवस किट बैग को लिया, ये जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैग था. एंड उसके अंदर टोटो को बंद कर दिया. टोटो कुड नॉट टेक हिज हैंड्स आउट ऑफ हिज बैग. अब इस बैग से वो हैंड्स बाहर नहीं निकाल सकता था. इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट. वो बाइट नहीं कर सकता था जो कि बैग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. ग्रैंडफादर वॉज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन. टोटो ग्रिंट एट द टिकट कलेक्टर एट द गेट. जो टोटो था, टोटो ने अपनी स्ट्रॉन्ग स्माइल दिखाई टिकट कलेक्टर को एट द गेट. द टिकट कलेक्टर वॉज टेकन अबैक. He told grandfather that he had a dog with him. उन्होंने बोला ग्रैंडफादर को कि आपके पास एक डॉग है. So he would have to pay ₹3 as fare for this dog. इसके लिए उनको ₹3 पे करना होगा. In vain argued the grandfather that Toto was not a dog. He had his pet tortoise with him also. So he asked the ticket collector how much he should pay for it. अब उन्होंने ग्रैंडफादर ने बोला कि मेरे पास भी टोटोइस है जिसका मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, कितना पे करना चाहिए. द टिकट कलेक्टर सैड दैट इट वॉज नॉट अ डॉग. वो एक डॉग नहीं था. सो देयर वॉज नो चार्ज फॉर दैट. इसके लिए उनको चार्ज नहीं करना पड़ा. फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड इन द हाउस. Grandfather gave Toto a comfortable place in the stable. अब इसकी जो मिस्चीवियस था, जो नॉटी मिस्चीवियस बिहेवियर था, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था. So it was going on. There Toto got Nana, the family female donkey, as a companion, but Toto continued teasing her. उसको परेशान करना जारी था उसके लिए. And इट वॉज अ फीमेल डोंकी जिसको भी वो परेशान करता था. दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स. और वो फ्रेंड्स नहीं बन सके. इन विंटर ग्रैंडफादर गिव अ टोटो अ लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर. ग्रैंडफादर ने एक लार्ज बोल गर्म पानी का किया. इट वॉज फॉर हिम टू बाथ इन. उसके नहाने के लिए. टोटो वुड सिट इन साइड द बोल. देन ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी एंड रब ऑल ओवर. और उसने क्या किया, टोटो ने सोप को अप्लाई करना शुरू कर दिया अपनी बॉडी में. एंड व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब ठंडा हो जाता था तो टोटो क्या करता था, ही वुड कम आउट ऑफ इट. देन ही वुड रन टू द किचन फायर. और क्या करता था, पानी ठंडा होता था एंड किचन फायर के पास भागता था. देयर ही वुड वार्म हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके. If anyone laughed at him, he would refuse to bath. अब कोई भी जब उससे देखकर हंसता था तो वो क्या करता था, नहाने के लिए मना कर देता था. बिकॉज ही वॉज, इसकी जो नॉटी जो बिहेवियर था उससे देखकर सब हंसते थे. Once Toto nearly boiled himself alive. एक बार, इसकी शैतानी तो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, इसके बाद एक के बाद दूसरी. तो अब इसने एक बार क्या किया, Once Toto nearly boiled himself alive. एक बार इसने जिंदा ही अपने आप को बॉयल कर दिया. There was a large kitchen kettle left on the fire. And
एक बड़ी सी कैटल थी, किचन कैटल, जिसमें कि पानी गर्म हो रहा था. It was to boil for tea. Toto decided to remove the lid. He found the water warm to bath. He got in. Just then, the water began to boil. Toto raised himself a little, but he sat down again. He continued jumping up. और ये क्या था, जब वो पानी बॉईल हो रहा था तो मंकी ने क्या किया, उसको नहाने के लिए अंदर चला गया. और जैसे ही उसको जब ज़्यादा गर्म लगने लगा था, वो जंप अप करता है. फिर उसके बाद फिर से वो अंदर चला जाता है. एंड देन व्हाट वाज हैपन, ग्रैंड मदर केम देयर. उनकी ग्रैंड मदर आती है. शी टुक हिम आउट ऑफ द कैटल. उसको कैटल से बाहर निकालती है. टोटो ऑलवेज मेड मिसचीव्स. ही टोर थिंग्स टू पीसेस. और उसकी शैतानियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता है, टुकड़ों में कर देता है. ओके. ही टोर अप द ड्रेसेस ऑफ द आंट ऑफ द नरेटर. जो नरेटर की जो ड्रेस है, नरेटर की आंट की जो ड्रेस है, उसको फाड़ दिया. वन डे द नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल. ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. एक बार नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस. नरेटर ने देखा कि टोटो राइस खा रहा है ऑन द डाइनिंग टेबल. ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. ग्रैंड मदर चिल्लाई. टोटो थ्रू अ प्लेट ऑफ हर. इतनी जो टोटो ने क्या किया, टोटो ने प्लेट को उनकी तरफ फेंका. वन ऑफ द नरेटर्स आंट रश्ड फॉरवर्ड. अब उनमें से जो आंट थी उनकी, वो भागी उनकी तरफ. टोटो थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर. और उसने क्या किया, टोटो ने एक भरा हुआ ग्लास उनके ऊपर फेंका. वेन ग्रैंडफादर केम, टोटो रैन आउट विद द डिश ऑफ पुलाव इन हिज हैंड. और टोटो क्या किया, टोटो भागा उस पुलाव की डिश के साथ. ही रैन अप द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री. और वो कहाँ पे भाग गया, जैकफ्रूट ट्री. जैकफ्रूट ट्री क्या है, एक कटहल का पेड़ है, उसकी ब्रांच के ऊपर भाग गया. ही थ्रू द डिश एट द ग्रैंड मदर व्हेन शी स्क्रीम्ड एट हिम. और उसने क्या किया, ऊपर से ही जो प्लेट थी, वो बोल था, वो फेंक दिया. व्हेन शी स्क्रीम्ड एट हिम. और जो ग्रैंड मदर थी, उसके ऊपर जब चिल्लाई थी, तो उसने जो डिश थी वो उठा के फेंक दी. टोटो कॉस्ट मच लॉस टू द फैमिली. टोटो ने बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया था. डिशेस वर ब्रोकन. बर्तनों को तोड़ दिया. क्लॉथ्स, कर्टन, वॉल पेपर वर टोर्न. सब कुछ फाड़ दिया था. द फैमिली कुडंट बियर दिस. अब फैमिली जो थी वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बिकॉज he had spoiled everything of the family. The family couldn't bear this, so grandfather sold Toto back to the Tonga driver for ₹3. And finally, the narrator's grandfather sold Toto to the same Tonga driver for ₹3. If you have any feelings and experience of your pet, you can share with me in comment box. Now, what is the moral of the story? The story conveys the message that we should love animals. We should also treat them with respect. But being a white animal, the monkey creates a lot of trouble, and grandfather decided that the monkey would be happier with the Tonga driver. Grandfather treats Toto with love and concern. Now, this is the end of the story. I hope you have understood. Till then, keep learning,